Hello students, welcome to English tutorials. Student, today I am going to explain a beautiful and humorous poem How to Tell Wild Animals for the students of class 10. So student, before going through the poem, I would like to say that please subscribe my channel and press bell icon so that you could get the notification of upcoming videos. Okay. So student, let's start the poem How to Tell Wild Animals, which has been written by Caroline Wells. So as usual, we should know something about Caroline Wells. So Caroline Wells was born on 18 June 1862 and died on 26 March 1942. And Caroline Wells was an American writer and poet. Okay. So this is a little information about the poet. Now let's know something about the poem. A little introduction about the poem. Okay. So the poem is a very humorous poem, suggests some dangerous way to identify wild animals. And in this poem, the poet has explained the characteristics of various wild animals in a very funny way. So students, you should read it aloud, keeping to a strong and regular rhythm. Okay. So let's start. In this video, I will explain the poem line by line. Okay. So let's see the first stanza. If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, it he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. So student, in the first stanza, the poet describes about Asian lion. Okay. So if ever you should go by chance to jungles in the east, अगर आपको यह मौका मिले पूर्वी दिशा मतलब पूरब की दिशा में जंगलों में जाने का, so and if there should to you advance a large and tawny beast, तो वहाँ आपके सामने एक बड़ा और टॉनी बीस्ट मीन्स जो बादामी कलर का ऐसा वाइल्ड एनिमल्स आपके सामने आए. ठीक है. ठीक है. इट ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और वह आपके ऊपर इस तरीके से दहाड़े जैसे आपको फील हो कि अब आप मरने वाले हो. यू विल नो इट इज़ द एशियन लाइन, तब आप जान जाओगे कि यह एशियन लाइन है. ओके. नाउ कम्स टू द सेकेंड स्टांजा. Or if sometime when roaming sound, a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. Student, in the second stanza, the poet describes about the tiger. Okay. So और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, और अगर कभी अ नोबल वाइल्ड बेस्ट ग्रीट्स यू, यानी कि एक देखने में नोबल लगे लेकिन वाइल्ड हो. ठीक है. तो वैसा नोबल मीन्स रिस्पेक्ट देने वाला. ठीक है. तो कोई वैसा वाइल्ड एनिमल्स जो रिस्पेक्ट देने वाला जैसा देखने में लगे. ठीक है. और वह इधर उधर वॉन्डरिंग साउंड के साथ राउंड करे, इधर उधर घूमे, और आपको ऐसा फील हो कि वह आपको ग्रीट्स कर रहा है, आपका वेलकम कर रहा है विथ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, और उसके जो बॉडी है वो येलोइस ग्राउंड पे ब्लैक स्ट्रिप्स है. तो जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, और आपको ऐसा लगे कि वह आपको खा सकता है, वह आपको खाएगा. तो दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिस्कर्न. तो बस आप ये समझ जाइए कि आपको यह जानने में मदद करेगा कि वह बंगाल टाइगर है. ओके. ये इस स्टांजा में बंगाल टाइगर यानी कि टाइगर का कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है. ठीक है. आफ्टर दैट कम्स टू द थर्ड स्टांजा. If strolling forth a beast you view, whose hide with spots is peppered
As soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. 'Twill do no good to roar with pain, he will only leap and leap again. और अगर स्ट्रॉलिंग मीन्स घूमते हुए, ठीक है, अगर कोई वाइल्ड एनिमल जिसे आप आगे की ओर घूमते हुए देखो, जिसका जो बॉडी है वो स्पोर्ट्स से ढका हुआ है, ठीक है, स्पोर्ट्स से ढका हुआ है, धब्बों से ढका हुआ है, और पेपर्ड की तरह यानी काली मिर्च की तरह जो धब्बे, काली मिर्च के जैसे धब्बों से वो ढका हुआ है, और जैसे जल्द से जल्द वह आपके ऊपर छलांग लगाने वाला हो, ठीक है, यू विल नो इट इज़ लेपर्ड, ठीक है, तो छलांग मार देगा वो आप पे, छलांग देखते ही देखते वो आप पे छलांग मार देगा, तो आप यह जान जाओगे कि वह लेपर्ड है, वह चीता है. ट्विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन. और वह दर्द से दहाड़ता नहीं है, वह सिर्फ और सिर्फ बार बार छलांग लगाता है, ठीक है, तो वो क्या है, लेपर्ड है. सो see the fourth stanza. If when you are walking round your yard, you meet a creature there, you hugs you who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubt, I guess he will give you just one more cares. और यदि आप अपने आंगन के चारों ओर घूम रहे हो, ठीक है, एंड वहाँ पे आप किसी क्रिएचर से मिले, किसी जंतु से मिले जो कि आपको कस के पकड़ लेगा, ठीक है, बहुत ही हार्ड हग करेगा, तो आप ये श्योर हो जाइए कि वह बियर है, ठीक है, भालू है. एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, तो मैं गेस करता हूँ कि वह आपको और भी ज़्यादा केयर करेगा, और भी ज़्यादा लाड करेगा, ठीक है. यहाँ पे भालू का कैरेक्टरिस्टिक्स बताया गया है, ठीक है. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट स्टांजा. दो टू डिस्टिंग्विश beasts ऑफ प्रे, अ नोविस माइट नन प्लस द crocodile you always may tell from the hyena thus, hyenas come with merry smiles, but if they weep they are crocodiles. okay. और यदि कोई भी ऐसा जानवर, ठीक है, जो शिकार करने वाला हो, तो उससे पहचानने में आपको डिफरेंस करना पड़े, ठीक है, किससे, अगर आप दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट टू ऑफ प्रे, अ नोविस माइट नन प्लस, अगर आप नए हो, जानवरों के बारे में आप उतना नहीं जानते हो, और आपको अपने और जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जो शिकारी जानवर होते हैं, उन्हें आपको पहचानने में प्रॉब्लम होती हो, तो आप यह जान लो कि द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस. तो आप क्रोकोडाइल और हाइना, हाइना मीन्स एक जिसे हिंदी में हम लकड़बग्घा कहते हैं, और वो एक कार्निवोरस एनिमल होता है, मांसाहारी एनिमल होता है, ठीक है. तो क्रोकोडाइल और लकड़बग्घा में आपको डिफरेंस करना हो, और आप नए नए हो, आपको जानवरों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो आपको इन दोनों में डिफरेंस करना है. तो आप ये समझ लो कि जो हाइनाज होते हैं, हाइनाज कम विथ मेरी स्माइल्स, बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स. तो हाइना जो होते हैं वो बहुत ही हैप्पी स्माइल के साथ वो आते हैं, लेकिन अगर वो रोते हैं, मान लीजिए कि वो जानवर अगर रो रहा है, तो फिर वो क्रोकोडाइल से, ठीक है. आफ्टर दैट, in the last stanza, the true chameleon is small, a lizard sort of things. He hasn't any ears at all, and not the true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all, and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. और जो ट्रू कैमेलियन होता है, कैमेलियन इज अ काइंड ऑफ लॉन्ग लिजार्ड, ओके. तो
तो जो ट्रू कैमेलियन होता है, जिसे हम गिरगिट भी कहते हैं, ठीक है, तो उसको अगर आपको पहचानना है तो वह एक लिजार्ड की तरह होता है, लेकिन वो थोड़ा लंबा होता है। एंड ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, और उसके कान नहीं होते हैं। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और विंग्स भी नहीं होते हैं, ठीक है, एक भी विंग नहीं होता उसका। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, और अगर मान लीजिए कि ट्री पर कुछ नहीं है, टिस द कैमेलियन यू सी, तो समझ लीजिए वहाँ पे कैमेलियन है, ठीक है। यहाँ गिरगिट जो होता है ना, उसका करेक्टरिस्टिक्स यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे टिस जो है, इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इट इज़, ओके। इट इज़ को यहाँ पे शॉर्ट में TIS, टिस लिखा हुआ है। सो इट इज़, इट इज़, ओके। सो स्टूडेंट, this is about the poem how to tell wild animals, okay. And you have to read this poem, and you have to write stanza wise explanation also, okay. And I will provide the poetic devices used in this poem by WhatsApp group. So student, please listen this, please see this video carefully, and you should learn the explanation, stanza wise explanation also, okay. So student, keep learning. Thanks for watching.